Hello everyone. Uh, so in last video we already have seen agenda of executor framework. So we'll start today with our first agenda. What is executor framework and how does it work? So we'll start in depth. Uh, so basically in this video, uh, mostly we will be discussing theory part. Uh, I mean, practically, maybe from next video onward, we will see. But before going to practical, there are few basic things which we need to know. तो वो सारी चीजें हम आज देखेंगे. थ्योरिकली उसको देखेंगे क्या होता है, कैसे यूज कर सकते हैं एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क को. And then we will pick next agenda, and then we'll discuss in depth, basically via some example. So let's start the executor framework. So we'll see one by one. Like see, yeah. So executor framework. So I mean, executor framework होता क्या है? Normally, if you uh, think in one word, so it's a one pool basically. What kind of pool? It's a one pool of threads where multiple threads will be there in single pool. So executor framework का main intention है create some pool, maybe one pool, multiple pool of threads. So वो कैसे क्या करेंगे? We will see. So like if you see here executor framework, Java executor framework introduced in JDK5 and it is part of concurrent package. So ये जो हमारा executor framework आया था वो Java 5 में ही आ गया था और ये concurrent package का part है. Executor framework is used to run the runnable callable task object basically. Yeah. So it takes both either runnable type task or either callable type task. See, it takes both. So it's mentioned here executor framework is used to run the runnable and callable objects without creating the new threads. Without creating the new threads means अभी जो हम डिस्कस किए हैं कि आई मीन एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है क्या. ये एक पूल है जहां मल्टीपल थ्रेड्स होंगे, तो हमें बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी थ्रेड पड़े हैं किसी पूल में, पिक द थ्रेड, एग्जीक्यूट द टास्क एंड अगेन पुश बैक द थ्रेड इनटू द पूल. तो वही यहाँ बोल रहा है, ये रनेबल कॉलेबल दोनों यूज कर सकता है विदाउट क्रिएटिंग द न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू थ्रेड्स बेसिकली. या इट विल ऑलवेज रीयूज द ऑलरेडी क्रिएटेड थ्रेड, जो अभी हम डिस्कस किए हैं कि वो हमेशा रीयूज करेगा, नया थ्रेड नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि एवरी टाइम क्रिएटिंग न्यू थ्रेड it will be costly basically. So better to use already created thread. So जो हमारे पूल में already thread पड़े हैं उनको ये यूज करेगा. It will always reuse the already created thread. So ये कहना चाह रहा है कि थ्रेड में जो भी पूल में थ्रेड पड़े हैं it will pick and it will execute the task. So I mean benefit क्या क्या है, we'll see. So executor framework mainly separate the task creation and execution. Yes. So see, task creation and execution the task, these two things are totally different. So we can't combine both in one go. I mean in one thread basically. कि एक थ्रेड है जो टास्क क्रिएट भी करे और टास्क एग्जीक्यूट भी करे. तो ये क्या करता है कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क क्या करता है, मेनली सेपरेट करता है टास्क क्रिएशन को और एग्जीक्यूशन को, दोनों को. We have to create tasks which implement either runnable or callable interface and send them to the executor. तो ये क्या कह रहा है, जो भी हम टास्क क्रिएट करेंगे वो either runnable और callable को implement करेगा और फिर उस टास्क को हम एग्जीक्यूटर को सेंड कर देंगे. तो मतलब ये तो सिंपल है. आई थिंक ये एजेंडा में ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे
कि कि जो भी हम एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क में टास्क सबमिट करेंगे एग्जीक्यूटर सर्विस को, तो वो टास्क आइदर रनेबल टाइप का होना चाहिए या कॉलेबल टाइप का होना चाहिए। तो इसलिए हमको कोई भी टास्क रनेबल और कॉलेबल बनाना है, दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट द आइदर रनेबल और आइदर कॉलेबल इंटरफेस। तो वही चीज ये डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क इंटरनली मेंटेन ए थ्रेड पूल, I mean, yeah, configurable thread pool to improve application performance by avoiding the continuous creation and implementation of thread. करेक्ट। तो ये क्या करता है कि इंटरनली थ्रेड पूल क्रिएट करता है जो कि वो कॉन्फ़िगरेबल होता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पूल है तो डेफिनेटली वो एप्लीकेशन को इम्प्रूव करेगा परफॉर्मेंस वाइज। और किस वे में इम्प्रूव करेगा? क्योंकि वो बार बार क्रिएट और इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी थ्रेड अगर हम क्रिएट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली अगर कोई थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ये दोनों अवॉइड करता है और उसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है एप्लीकेशन का। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द टास्क and running them with necessary threads from the pool। या सेम थिंग कि रिस्पॉन्सिबल है टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो भी टास्क एग्जीक्यूट होगा वो जो भी नेसेसरी थ्रेड्स रिक्वायर्ड है वो थ्रेड पूल से पिक करके एग्जीक्यूट करें। सो दीज ऑल द अबाउट एग्जीक्यूटर सर्विस। एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क बेसिकली होता क्या है? ये काइंड ऑफ पूल है जहाँ मल्टीपल थ्रेड सेट करेंगे, वहीं रहेंगे। हमको बार बार थ्रेड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हमारा थ्रेड पूल ऑलरेडी है जहाँ से जब भी थ्रेड की जरूरत पड़ेगी तो पूल से थ्रेड आएगा, टास्क को पिक करेगा एंड टास्क एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन जब टास्क फिनिश हो जाएगा तो वापस वो पूल में चला जाएगा थ्रेड। तो ये सब है एडवांटेज। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटर्स या सो अब तक तो हम पढ़े कि एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क होता क्या है, पूल होता है। बट अगेन पूल क्रिएट करने के कितने टाइप्स? क्योंकि हम एजेंडा में पढ़े थे कुछ चीजें कि डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी मेथड्स हैं, या फैक्ट्री मेथड्स कह लें, कुछ भी कह लें सेम है मतलब। तो आइदर वी कैन से यूटिलिटी मेथड और आइदर वी कैन से फैक्ट्री मेथड। द इंटेंशन इज सेम, इट विल रिटर्न सम काइंड ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड पूल बेसिकली। तो फोर वे है, फोर वे से हम थ्रेड पूल क्रिएट कर सकते हैं। अब उन चारों में क्या क्या डिफरेंट है वो देखेंगे। ये चार तरीके हैं: सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, फिक्स थ्रेड पुल, कैश थ्रेड पुल एंड शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर। तो चार तरह से हम पुल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब कौन सा पुल किस यूज केस के लिए सुटेबल है वो सारा चीज हम देखेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद हम वो सारे यूटिलिटी मेथड, सारे फैक्ट्री मेथड विथ एग्जाम्पल विथ यूज केस हम प्रैक्टिकली देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, उसका डेमो देखेंगे कैसे काम करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप डिबग करेंगे कि आई मीन कैसे कैसे काम हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है उसको, तो वो देखेंगे हम प्रैक्टिकली। बट बिफोर गोइंग फॉर प्रोग्राम वी विल सी हाई लेवल ऑफ थ्योरी ऑफ एवरी यूटिलिटी मेथड। तो अभी हम बेसिकली हाई लेवल चारों हम पढ़ेंगे कि चार टाइप के हैं। मतलब एग्जीक्यूटर जो जिसके वजह से जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन क्रिएट द पुल। तो ये चारों हम देखेंगे। सो फर्स्ट है सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर। तो इसका क्या मतलब है कि ये एक एक टाइप का पूल क्रिएट करेगा जो होगा सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर पूल। So we can get single thread executor pool by calling the following static methods of executors class। तो दो मेथड्स हैं बेसिकली, दो ये फैक्ट्री मेथड है जिसको कॉल करने पे हमें सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर पूल मिलेगा। तो एक है डिफॉल्ट, वी नो नीड टू पास एनीथिंग, और अनदर वन इज वी हैव टू पास द थ्रेड फैक्ट्री।
तो आई थिंक ये वाला पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे जब भी हम लास्ट वाला वीडियो डिस्कस कर रहे थे एजेंडा की थ्रेड फैक्ट्री क्या है. तो आई मीन one level of customization we can do while using this another utility method. तो इसको देखेंगे डिटेल में कि कैसे होता है. जब भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो वी विल सी. अभी थ्योरेटिकली देखते हैं कि इसका यूज क्या है और कब इसको कौन से यूज केस में इसको हम सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर को सेलेक्ट करेंगे. So the single thread executor has always only one single thread and it is used when we need to execute task in sequential order. तो ये क्या पूल बोल रहा है कि ये पूल तो है लेकिन इस पूल में हमेशा एक ही थ्रेड रहेगा. इस पूल में कभी भी एक थ्रेड से ज्यादा थ्रेड नहीं रहेंगे. इसीलिए इसका नाम ही है सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर. तो क्या बोल रहा है कि इट हैज ऑलवेज ओनली वन सिंगल थ्रेड and it is used when it need to execute task in sequential order. और इसका काम क्या है? I mean ये by default हमें बता रहा है कि अगर एक थ्रेड है दैट मीन्स ये सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करेगा. जो टास्क आया उसको पिक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. जैसे वो टास्क खत्म हुआ तो जो नेक्स्ट टास्क है उसको लेगा और उसको पिक करेगा. क्योंकि थ्रेड एक ही है तो वो वन बाय वन सीक्वेंस में सारे टास्क को एग्जीक्यूट करेगा. इफ द थ्रेड डाई if the thread dies due to an exception while executing a task. So a new thread is created to replace the old thread and the subsequent tasks are executed in the new one. तो ये क्या बोल रहा है? दैट मीन्स कि अगर किसी वजह से एक थ्रेड डाई हो गया, सपोज किसी एग्जीक्यूशन किसी एक्सेप्शन की वजह से, सो दैट मीन्स थ्रेड डाई हो गया तो थ्रेड पूल में कोई भी थ्रेड नहीं होगा. क्योंकि सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर क्या बोलता है कि उस पूल में एक ही थ्रेड रहेगा हमेशा. So if only one thread is there and that thread got die, that means there is no thread. तो जो भी रिमेनिंग टास्क है उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो ये बोल रहा है कि अगर वो थ्रेड डाई हो गया बिकॉज ऑफ किसी एक्सेप्शन से, तो ए न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड. ऑटोमेटिकली एक न्यू थ्रेड क्रिएट होगा एंड इट विल रिप्लेस विथ ओल्ड. तो जो भी ओल्ड वाला थ्रेड है ना उससे रिप्लेस हो जाएगा, नया वहां जाके बैठ जाएगा. और जो भी सब्सिक्वेंट टास्क, जो भी नए टास्क आएंगे, जो भी नया टास्क पेंडिंग है, वो सारा टास्क न्यू वाले थ्रेड से एग्जीक्यूट होगा जो नया थ्रेड क्रिएट हुआ है. सो दैट मीन्स अगर बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ सम एक्सेप्शन, अगर कुछ इशू होता है और थ्रेड डाई हो गया तो दैट मीन्स ऑटोमेटिकली एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और हमेशा एक थ्रेड सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर में रहेगा ही रहेगा. सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर पूल में रहेगा ही रहेगा. तो अगर हम इसके सिंटैक्स देखें तो सिंटैक्स यही है न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर का कि ये एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर्स क्लास के अंदर है और ये स्टैटिक मेथड है. तो इसको नॉर्मली हम कॉल करेंगे क्लास के नाम से ही और ये हमें एक एग्जीक्यूटर सर्विस ऑब्जेक्ट देगा. सेम ये दूसरा भी है, इसमें हम न्यू फैक्ट्री पास करेंगे, मतलब न्यू थ्रेड फैक्ट्री पास करेंगे और वो थ्रेड फैक्ट्री के बेस पे एक हमें नया एग्जीक्यूटर सर्विस ऑब्जेक्ट देगा. तो ये सिंटैक्स है. बट जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सिंटैक्स देखेंगे कैसे इसको यूज करना है. हमको ये ऑब्जेक्ट मिल गया तो इसको कैसे आगे यूज करना है और कैसे हम चेक करेंगे सारा यूज केसेस कि थ्रेड डाई हो गया तो क्या हो रहा है और क्या हमेशा एक ही थ्रेड वहां रहेगा या क्या मल्टीपल टास्क आ रहा है तो सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट हो रहा है. सारा वो यूज केस हम देखेंगे. देन फिक्स थ्रेड पूल. तो ये एक दूसरा टाइप है एग्जीक्यूटर्स का, फिक्स थ्रेड पूल. तो नाम ही बता रहा है कि फिक्स थ्रेड पूल में कुछ थ्रेड्स के फिक्स होगा, कुछ कैपेसिटी होगा जहां हम वो फिक्स करेंगे. नॉट कैपेसिटी बट कुछ रेंज देंगे कि हाँ इतना इतना थ्रेड का हमारा एक पूल चाहिए इतने का. तो लाइक we can get fixed thread pool by calling the following static method of executors class.
सेम वे सी एग्जीक्यूटर्स क्लास का एक स्टैटिक मेथड है, फैक्टरी मेथड है कॉल्ड न्यू फिक्स थ्रेड पुल। और नाउ यहाँ हम एक n पास कर रहे हैं। n इज नथिंग बट इंटीजर। तो जैसे हम यहाँ 5 पास करेंगे तो ये 5 थ्रेड क्रिएट कर देगा और ये फिक्स थ्रेड पुल में सेट हो जाएंगे पांचों थ्रेड। सेम वे दूसरा मेथड है कि हम n पास करेंगे, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड थ्रेड फैक्टरी पास करेंगे। तो यहाँ भी 5 थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे अगर हम 5 पास करते हैं n के जगह। एंड थ्रेड फैक्टरी जो भी हमारा कस्टमाइजेशन होगा थ्रेड फैक्टरी लेवल का, तो वो हम पास कर देंगे। तो एक पूल क्रिएट हो जाएगा ऑफ n थ्रेड। तो इसको देखते हैं ये क्या होता है। फिक्स थ्रेड पूल इज ए थ्रेड पूल हैविंग ए फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड, जो कि हम डिस्कस किए हैं कि इसके पास एक फिक्स नंबर ऑफ थ्रेड्स रहते हैं। वो फिक्स नंबर क्या है? n है। n में 5 देंगे तो 5 होगा, 10 देंगे तो 10 होगा, 20 देंगे तो 20 होगा। वो n डिनोट करेगा जो भी हमारा नंबर पास करेंगे। द टास्क सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटर आर एग्जीक्यूटेड बाय n थ्रेड्स। करेक्ट। अगर n थ्रेड्स हैं और हमारे पास टास्क सबमिट हुए मान लो n टास्क, तो वो सारे टास्क सभी थ्रेड से एग्जीक्यूट होंगे। तो मतलब यही बोल रहा है कि द टास्क सबमिटेड टू द एग्जीक्यूटर आर एग्जीक्यूटेड बाय n threads, and if there is a more tasks to be executed, those are stored on a linked blocking queue। जो ये हम आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एजेंडा में हाई लेवल। सेम थिंग यहाँ भी हम फिक्स थ्रेड पूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि सी जब भी हम फिक्स थ्रेड पूल क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नंबर पास करेंगे। तो मान लीजिए 5 पास कर दिए और हमारा टास्क आ रहे हैं कुछ कुछ, मान लीजिए 3 टास्क है। तो 5 में से 3 टास्क ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे 3 थ्रेड के द्वारा, और तीनों थ्रेड 3 टास्क को एग्जीक्यूट करने लगेंगे और डन, टास्क फिनिश हो जाएगा। लेट्स अज्यूम 5 टास्क आ गए तो पांचों टास्क पिक कर लेंगे एक एक, सॉरी पांचों थ्रेड पिक कर लेंगे एक एक टास्क, और वो हर टास्क को रन करेंगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा टास्क आ रहे हैं तो हमारे सारे थ्रेड फुल हैं, तो जो भी टास्क आएंगे वो लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू में स्टोर हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे पांचों थ्रेड रन कर रहे हैं उसमें से कोई भी फ्री होगा तो वो लिंक्ड ब्लॉकिंग क्यू से पिक कर लेगा और पिक करके एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। This n, whatever we are talking n, so this n number is usually the total number of threads supported by the अंडरलाइन प्रोसेसर। ये तो सिंपल है, जो भी हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं नॉर्मली इसे सपोर्टेड बाई है कि जितना हम पास करेंगे उतने थ्रेड होंगे, उतने थ्रेड क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये देख ली फिक्स थ्रेड पर। इसके सिंटेक्स सेम है। एग्जीक्यूटर्स क्लास के थ्रू हम कॉल करेंगे, नंबर ऑफ थ्रेड पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा एग्जीक्यूटर सर्विस ऑब्जेक्ट। सेम एग्जीक्यूटर सर्विस ऑब्जेक्ट हमें इसमें भी मिलेगा, इसमें बस डिफरेंट है कि हमें कस्टमाइज थ्रेड फैक्ट्री पास करेंगे। तो अभी तक हम पढ़े सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर एंड फिक्स थ्रेड एग्जीक्यूटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल थ्रेड में हमेशा एक ही थ्रेड रहेगा, फिक्स थ्रेड में ये है कि हम बेस्ड ऑन जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना थ्रेड पास कर सकते हैं और उतना थ्रेड पैरेलली रन कर सकते हैं। हालांकि डिपेंड करता है यूज केस के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि हम 100 थ्रेड पास कर दिए तो 100 के 100 थ्रेड पैरेलली रन करेंगे, इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब, डिटेल इन द सेंस जब हम पिक करेंगे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, जब डेमो दूंगा तो उस समय बताऊंगा कि कितने थ्रेड पैरेलल रन कर सकते हैं। सिंगल थ्रेड में तो सिंपल है कि हमेशा एक ही थ्रेड होगा, दैट मीन्स हमेशा एक ही टास्क एग्जीक्यूट होगा और वो भी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। सीक्वेंस मतलब वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा, एक टास्क कंप्लीट हुआ तो दूसरा टास्क, दूसरा कंप्लीट हुआ तो तीसरा टास्क। बट फिक्स में क्या है कि पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे, इसमें वन बाय वन नहीं होगा। अगर 5 टास्क है तो पांचों, 5 थ्रेड है तो पांचों 5 टास्क पिक कर सकते हैं और पांचों टास्क पैरेलली रन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है। अभी देखेंगे कैश। कैश थ्रेड थोड़ा इंटरेस्टिंग है।
जिनको डिटेल में नहीं पता है सिंगल थ्रेड और फिक्स थ्रेड और कैश थ्रेड, तो मोस्ट ऑफ द पीपल चूज कैश थ्रेड। और क्यों चूज करते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। सो देख लेते हैं क्या है। We can get cache thread pool by calling the following static methods of executors class. That means ये भी मेथड executors class में ही प्रेजेंट है। ये जो हमारे फैक्ट्री मेथड है या यूटिलिटी मेथड है, ये दोनों हमारे इसमें एग्जीक्यूटर क्लास में ही पड़े। तो इसमें भी फर्स्ट वाले में हम कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे, नेक्स्ट वाले में हम थ्रेड फैक्ट्री, एक कस्टमाइज थ्रेड फैक्ट्री देंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, क्या न्यू है जो हम लास्ट दो पढ़े हैं, सिंगल और फिक्स वाला। So this thread pool is mostly used where there are lots of short like parallel tasks to be executed. तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है, तो थोड़ा इसको देखेंगे केयरफुली। So this thread pool is mostly used where there are lots of short like parallel tasks. मतलब ये मोस्टली कहाँ यूज होता है, जहां बहुत सारे छोटे छोटे टास्क हैं, छोटे छोटे लाइव टास्क हैं जिनको एग्जीक्यूट करना है। तो ये मतलब दिमाग में रखना होगा कि छोटे छोटे टास्क, यहाँ बड़े बड़े टास्क की बात नहीं हो रही, छोटे छोटे टास्क होंगे और जहाँ बहुत सारे टास्क हैं, तो ये वहां यूज होता है टू बी एग्जीक्यूटेड। दिस एग्जीक्यूटर pool is not bounded. This executor pool is not bounded means there is no boundation for thread. How many thread can be there in that cache pool? 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है एंड 100 भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है दिस एग्जीक्यूटर पूल इज नॉट बाउंडेड इफ ऑल थ्रेड्स आर बिजी executing some task and new task comes, the pool will automatic create and add a new thread to the executor. सेम चीज जो ये फर्स्ट सेंटेंस बोल रहा है कि नॉट बाउंडेड, मतलब क्या है कि कोई लिमिट नहीं है इसका कितना थ्रेड हो सकता है। तो वही चीज यहाँ एक्सप्लेन हुआ है कि अगर सभी थ्रेड बिजी है कुछ ना कुछ टास्क एग्जीक्यूट करने में और कुछ नया टास्क आ गया, अगर कुछ नया टास्क आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि एक नया थ्रेड क्रिएट होगा और वो थ्रेड ऐड हो जाएगा पूल में, और वही थ्रेड रिस्पॉन्सिबल होगा नए टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स अज्यूम कि आपके कैश पूल में 10 थ्रेड पड़े हुए हैं और 10 थ्रेड पड़े हुए हैं, दैट मींस 10 थ्रेड रन कर रहा है, 10 थ्रेड आपके 10 थ्रेड सॉरी 10 टास्क रन कर रहा है। तो आई विल रिपीट सेम थिंग कि एक कैश पूल है जिसमें 10 थ्रेड पड़े हुए हैं और आपके 10 टास्क भी हैं, तो वो सभी 10 के 10 थ्रेड 10 टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि 11वां टास्क आ गया, तो यहाँ क्या होगा कि कोई थ्रेड फ्री नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक नया थ्रेड क्रिएट होगा, वो थ्रेड पूल में असाइन हो जाएगा और फिर वही थ्रेड क्या करेगा कि नए वाले टास्क को पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी क्या हो गया, हमारे पास 11 थ्रेड हो गए और 11 टास्क भी हो गए, सब टास्क रन हो रहे हैं एक एक थ्रेड के थ्रू और सभी 11 के 11 थ्रेड बिजी है। लेट्स assume immediately 10 मोर थ्रेड 10 मोर टास्क कम। तो इस केस में क्या होगा कि 11 के 11 थ्रेड बिजी हैं, 11 टास्क रन हो रहे हैं और 10 एक्स्ट्रा टास्क आ गए नए। तो ऑटोमेटिकली कैश थ्रेड पूल में क्या होगा कि 10 नया थ्रेड बन जाएगा और सब थ्रेड एक एक टास्क पिक कर लेंगे और सभी टास्क एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो यानी अभी आपके पास 21 थ्रेड है और 21 टास्क भी है, सभी 21 थ्रेड क्या होंगे, रन करेंगे एक एक टास्क। ठीक है, तो मतलब इससे क्या हो रहा है कि अगर आपके पास टास्क मतलब थ्रेड बिजी है और एक बार 100 टास्क आ गए, तो इमीडिएटली 100 थ्रेड भी क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोले हैं कि इसका बाउंडिंग नहीं है, दिस एग्जीक्यूटर पूल इज नॉट बाउंडेड। बट लेट्स अज्यूम कि
10 थ्रेड हैं, 10 के 10 थ्रेड बिजी हैं, और कोई टास्क आया, और टास्क आते ही कोई थ्रेड फ्री हो गया, 10 में से मान लो 2 थ्रेड फ्री हो गया कैश पूल में, तो फ्री हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद नया थ्रेड नहीं क्रिएट होगा। नया थ्रेड तभी क्रिएट होगा जब एग्जिस्टिंग सभी थ्रेड बिजी है। अगर एग्जिस्टिंग थ्रेड कोई काम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद कंप्लीट करने के इमीडिएट बाद कोई टास्क आ गया, तो जो भी थ्रेड कंप्लीट करके टास्क आइडल पे हुआ है, तो वो नया टास्क पिक कर लेगा और उसके बदले नया थ्रेड क्रिएट नहीं होगा। और लेट्स सी कि कोई टास्क कंप्लीट हुआ, थ्रेड आके आइडल हो गया। आइडल का मतलब उसके पास कुछ काम नहीं है, वो सिंपली बैठा है पूल में। तो वो कब तक बैठ सकता है? अगर उसको टास्क नहीं मिलेगा, अगर टास्क आ गया तो नया टास्क पकड़ लेगा, पिक कर लेगा मेनली, और एग्जीक्यूट करने लगेगा। लेकिन अगर टास्क आया ही नहीं तो वो कब तक बैठेगा? तो वो देखेंगे आगे। आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में सारा डिस्कशन है, सो वील सी। So as soon as one threads become free, it will take up the execution of new task। जो भी मैं बताया हूँ कि अगर कोई थ्रेड फ्री हो गया तो वो नया टास्क पिक कर लेगा, वहां पे नया थ्रेड नहीं क्रिएट होगा। इफ ए थ्रेड रिमेन आइडल फॉर 60 सेकेंड, अभी जो मैं बोल रहा था कि अगर वो फ्री हो गया है, आइडल बैठा है और टास्क नहीं है उसके पास, तो वो कब तक पूल में बैठ सकता है? तो उसका है 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट तक वो पूल में बैठ सकता है। इफ ए थ्रेड रिमेन आइडल फॉर 60 सेकेंड, दे विल गेट टर्मिनेटेड एंड रिमूव फ्रॉम द कैश। अगर वो 60 सेकेंड तक है आइडल और उसको कोई टास्क नहीं मिला, तो क्या होगा? वो थ्रेड टर्मिनेट हो जाएगा और फिर पूल से रिमूव भी हो जाएगा। हाउएवर, मेन थिंग अब है जो समझना है, इफ नॉट मैनेज करेक्टली, अगर हम कैश थ्रेड पूल को करेक्टली मैनेज नहीं करेंगे तो ये काफी ओवरलोडेड हो जाएगा, काफी हमारे एप्लीकेशन को इम्पैक्ट कर देगा परफॉर्मेंस वाइज। और वो कैसे करेगा? विल सी हियर। इफ नॉट मैनेज करेक्टली और द टास्क आर नॉट शॉर्ट लाइफ, या तो हम उसको करेक्टली मैनेज नहीं कर रहे हैं, और या हम जो टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं कैश थ्रेड पूल के थ्रू, वो छोटे छोटे टास्क नहीं है, बड़े बड़े टास्क हैं। सो द थ्रेड पूल विल हैव लॉट्स ऑफ थ्रेड्स। तो इस थ्रेड पूल के पास क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा थ्रेड हो जाएंगे। दिस मे लीड टू रिसोर्स थ्रैशिंग एंड हेंस परफॉर्मेंस ड्रॉप। डेफिनेटली हद से ज्यादा थ्रेड होना भी एक डिसएडवांटेज है। हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल थ्रेड्स चाहिए, जो मल्टीपल थ्रेड्स हो और मल्टी प्रोसेसिंग हो, पैरेलल मल्टीपल टास्क हमारे रन हो। लेकिन हर चीज का एक मतलब बाउंड्री है, कितना लिमिट है। हद से ज्यादा अगर आपके 100 टास्क है और 100 थ्रेड क्रिएट हो चुके हैं, तो वो काफी हैवी हो जाएगा, और जो कि हमारा एप्लीकेशन को मतलब स्लो कर देगा, उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है कि हम एक एप्लीकेशन में कितना मैक्सिमम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा और उसके परफॉर्मेंस में मतलब नीचे नहीं करेगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा, उसके परफॉर्मेंस में कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा स्लो होने का। तो वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि कितना कर सकते हैं। तो वो जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ईच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट, तो उसको हम देखेंगे वन बाय वन। सिंटेक्स है सेम है, एग्जीक्यूटर्स क्लास में हमारा न्यू कैश थ्रेड पूल पड़ा है, और सेम मतलब हम थ्रेड फैक्ट्री में पास कर सकते हैं, जो हमें एग्जीक्यूटर सर्विस का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये बस हम सिंटेक्स बता रहे हैं, बट उसको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो देखेंगे कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर ये भी इंटरेस्टिंग है ये भी, और काफी ह्यूज लेवल पे इसका भी यूज होता है इंडस्ट्री में। सो वी विल सी। सो वी कैन गेट शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर पूल by calling the following static methods of executors class। सेम ये भी executors class में है। न्यू सिंगल थ्रेड शेड्यूल्ड एग्जीक्यूटर, सेम उसी का है जिसमें हम थ्रेड फैक्ट्री पास कर देंगे। और एक है न्यू शेड्यूल्ड थ्रेड पोल, जिसमें हम कितना थ्रेड चाहते हैं,
n मतलब 5 पास करेंगे तो ये 5 थ्रेड पूल देगा शेड्यूल टाइप का, और सेम है दूसरा टाइप है n विथ थ्रेड फैक्ट्री। तो इसमें हम n पास करेंगे और कस्टमाइज थ्रेड फैक्ट्री पास करेंगे। तो इसको देखते हैं इसका क्या क्या एडवांटेज है। This executor is used when we have a task that need to be run at regular interval। तो रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या है कि किसी स्पेसिफिक टाइम के बेस, किसी स्पेसिफिक टाइम के बेस के मतलब एवरी 6 आवर, एवरी 10 आवर, एवरी 2 आवर, एवरी नाइट, एवरी आफ्टरनून, एवरी 1 डे, एवरी 2 डे, कुछ ना कुछ ड्यूरेशन देंगे जिस ड्यूरेशन को हमेशा रिपीट करता है, तो वो हम बोलते हैं रेगुलर इंटरवल। It is also used when we need to delay certain task। ये हम वहां भी यूज करते हैं जहां हमें किसी टास्क को किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए डिले करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके पास दो मेथड है और उन दो मेथड की हेल्प से हम वो कर सकते हैं। सो द टास्क कैन बी शेड्यूल्ड यूजिंग आइदर ऑफ टू मेथड्स। कौन सा मेथड? शेड्यूल्ड एट फिक्स रेट एंड शेड्यूल्ड विथ फिक्स्ड डिले।